So students, now we will see the sign convention as I told you before the break. Sign convention for spherical mirrors. साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट क्यों है इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट size of the image then we will follow first the sign convention then we'll apply this certain formula. First of all you know that this is the Cartesian plane. Here you have the plus x-axis, minus x-axis, plus y-axis, minus y-axis. We put the mirror like that. Its pole, the pole of the mirror, here I am taking the convex mirror. Pole of the mirror coincides with the origin of this Cartesian plane. So we are placing the mirror like that. Its pole is on the origin of the Cartesian plane. Earlier I told you that in both the mirrors we put the object in the left hand side. We put the object here in the left hand side. Okay. Obviously when we put the object here then light will come from left side to the right side. This is can be taken as incident ray. This is the incident ray falling on the mirror, and we may have the reflected ray from right to left. So to explain the sign convention we use the directional ray also. Here the incident ray is going from, we can say, from minus x to the plus x. From the minus x to the plus x. The first rule of the sign convention is that all the distances are measured from pole. सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ पे या जो भी इमेजेस आएंगे हमारी पोल से हम लोग मेजरमेंट करेंगे. यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड में ही रखते हैं. यहाँ पर नाउ all the distances measured along the direction of incident ray, that is from left to right, is taken पॉजिटिव. जितने डिस्टेंस हम इधर मेजर करेंगे और मेजर करते कहां से हैं, पोल से करेंगे, तो ये डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको प्लस में यहां पर मेजर करेंगे. ओके. एंड वाइस वर्सा, if we will
measure the distance to the opposite direction of incident. इसके opposite direction में distance measured opposite to direction of incident ray is taken negative सॉरी। अब दोनों को आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां से राइट में जाना चाहता हूं, here having the plus x axis, obviously from the Cartesian plane, from the coordinate geometry knowledge, in that we take the plus. If we move towards the minus x axis, obviously you have the minus measurement. On the basis of these two, you can see अभी हमने जो रूल्स जितने पढ़ लिए हैं, लेट अस सी इसका क्या एप्लीकेशन कहां पर। Here we have the focus and the center of curvature. You have the focus and center of curvature for the concave mirror. So focus is on the left hand side. If I want to calculate the PF distance, PF क्या था हमारा? It is the focal length. So we are going toward the left hand side. Therefore, focal length of concave mirror will be negative. इसको हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। इसी तरह से पीसी क्या था हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, radius of curvature, it is also on the left hand side, it will be also negative. इसको भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे हम लोग। What about these two things for the convex? अगर मेरे पास में कॉन्वेक्स मिरर है तब क्या होगा? पोल यहाँ है, फोकस इधर है। Now I have to measure distance along the direction of incident ray. So focal length of convex mirror, it will be positive. ये पॉजिटिव है क्योंकि हम राइट साइड में जा रहे हैं, प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं या इंसिडेंट रे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डिस्टेंस। Similarly, radius of curvature for convex, ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो समझ गया, यहां पर हमने जो सीखा है, the focal length of the concave mirror we will take negative and focal length of the convex will take the positive. हम जब भी आगे इसको कंसीडर करेंगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। Fourth part, earlier I told you we will always put the object in the left hand side. So distance of the object, distance of object is measured negative. हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि हमने बताया था हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखने वाले हैं, तो हम किधर जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंसिडेंट रे के, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Distance of real image is always taken
नेगेटिव। अब रियल से क्या फर्क पड़ता है? रियल से फर्क ये पड़ता है कि फॉर ऑल द 5 cases, initial 5 cases for the concave mirror, you have seen that image is in front of the, if object is there, it is in front of the mirror। इधर हमेशा इधर इमेज बनना ही है। इधर हमारा क्या अपोजिट टू द डायरेक्शन इंसिडेंट रे, तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो रियल इमेज जब भी हमको मिलेगी यहाँ पर, उसको मिरर के केस में बात कर रहे हैं, हमें इसको नेगेटिव कंसीडर करना है। एंड डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज is always taken positive। इसको पॉजिटिव लेंगे हम। अब ये we are having the 2 cases, one for the concave, one for the convex। वहां क्या था, हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इमेज हमारी यहां बनी थी। तो राइट साइड, पोल के राइट साइड में हम जब जा रहे हैं तो डिस्टेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस और कर्वेचर के कब साइन माइनस प्लस होने लिए जानिए। अब आता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ को और इमेज की लेंथ। हम ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है, वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस along the plus y axis। so length of object is taken पॉजिटिव। इधर प्लस वाई एक्सिस है, इधर जो भी मेजरमेंट करते हैं लेंथ के प्लस लेते हैं। ओके, तो यहां क्या होगा, इसी तरह से लेंथ ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो इसको हम नेगेटिव लेंगे हमेशा। वाई? बिकॉज रियल इमेज यू नो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यू आर हैविंग द माइनस वाई एक्सेस। तो नीचे जो भी मेजरमेंट होती है हमारी कार्टेशियन प्लेन में, वो नेगेटिव होती है। तो इसीलिए जो रियल इमेज हमारी, अच्छा ऑलवेज वी आर हैविंग रियल इमेज इन्वर्टेड। रियल इमेज कभी हमको रेड नहीं मिलती है, उल्टी मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से अगर हमको इमेज वर्चुअल मिल रही है तो इरेक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। तो जो हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ virtual image is taken positive। इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव टेकअप करेंगे इस इमेज को। तो इस तरह से हमने साइन कन्वेंशन जो अभी मैंने आपको बताए हैं, दीज आर द साइन कन्वेंशन विच वी विल apply when we will go through the further in this chapter। After the sign convention, we will see the mirror formula। Mirror formula, mirror formula is given by 1 upon f equal to 1 by v plus
1 by u, where u is the distance of object and v is the distance of image and f is the focal length. This formula is same for concave and the convex mirror, but difference is that we will apply the sign convention according to the numerical. Suppose you have a question, an object is placed at 20 centimeter in front of concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position of image. इमेज कहाँ बनेगी? तो हमको पहले साइन कन्वेंशन लगाना है. हो सके तो छोटा डायग्राम बनाना सीखिए इसके लिए. ये फोकल लेंथ है. दिस इज गिवन टू यू 10. ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है वो है 20 सेंटीमीटर. वी फाइंड करना है हमको यहाँ पर. इसके लिए मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में कंसीडर करेंगे. फोकल लेंथ हम यहाँ पर हमको दे रखी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ ये हमारी कॉन्केव की नेगेटिव ही होती है, उसको भी माइनस पुट अप करेंगे. Now I will apply the mirror formula to find the position of the image. तो 1 by v को मैं लिख सकता हूँ 1 by f माइनस, उधर शिफ्ट कर दिया. 1 by f, f के हमारे पास में है -10 माइनस, और ये को -20 प्रोडक्ट कर दिया हमने यहाँ पर. तो माइनस हमने यहाँ पर क्या लिया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस. 20 द एलसीएम, -2 +1 -1 by 20, और ये -1/2 क्या है, 1/v equal to -1 by 20. It implies that v will be -20 सेंटीमीटर. v आ गया हमारा -20 सेंटीमीटर. इसका मतलब है जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था वो वहीं पर इमेज बन गई. This I will calculated with the help of the mirror formula. Earlier when I explained to the image formation for the concave mirror, उधर जाके देखिए, चेक करिए, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर लिया. इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. एंड देयर यू हैव सीन दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो कैलकुलेशन में भी ये प्रूव हो गया, 20 आ रहा है तो इमेज हमारी ये बनने वाली है. तो न्यूमेरिकली हमने उस कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लिया जो हम पढ़कर आए थे. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स. When you solve the numericals, your concept will be more and more strengthened. हम जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट उतने और अच्छे होते चले जाते हैं. तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करेंगे. इस चैप्टर में आपको काफी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे आप. अभी यही चीज अगर आपको कॉन्वेक्स में करनी हो तो कॉन्वेक्स में अगर सेम क्वेश्चन में आपको दे दूं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरा -20 सेंटीमीटर है
और ऑब्जेक्ट मेरा है कॉन्वेक्स। अब ये इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहां पर ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है और इधर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने भी बताया था कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हम लोग क्या लेते हैं, +10 सेंटीमीटर। ध्यान इसका रखना है, प्लस। अब अगर मैं फॉर्मूला लगा के देखना चाहता हूं कि इमेज मेरी कहां बनने वाली है, तो 1/v = 1/f माइनस 1/u। f कितना मेरा, प्लस माइनस -20, 1/10, 1/20, 22 + 1, 3/20, ये 1/v, तो v becomes 20/3। तो 20/3 हमारे पास में डिस्टेंस आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा जा रहा है 7 सेंटीमीटर अप्रोक्स। अब 7 सेंटीमीटर क्या हो गया इसके पहले, और ये हमने वहां पर भी देखा था कॉन्वेक्स केस में। अच्छा एक चीज यहां देखिए, जो v आया है प्लस आया है, और पिछले क्वेश्चन में v माइनस आया था। प्लस का मतलब इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनने वाली है। तो ये साइन कन्वेंशन हम ध्यान रखेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगर v निगेटिव है, इसका मतलब मिरर के सामने, जो कि कॉन्केव केस में हमेशा आपको मिलेगा, v पॉजिटिव मतलब बिहाइंड द मिरर, जो कि हमें यहां पे मिला। लास्ट इसमें टॉपिक और देखते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन क्या है? व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, sometimes you see the size of the image diminished, sometimes it is magnified, enlarged. So how we define the magnification? Magnification, it is the ratio of magnification is the ratio of to the size of the image to the size of the object, where SI is the size of image and HO is the size of object. The symbol for magnification, we use M. We use M.